Our next speaker, who is none other than B.K. Shivani Ben. So I invite B.K. Shivani Ben, and I don't want to come between her and Supreme Being and you. मुझे याद आता है ब्रह्मा कुमारी बहुत सारे प्रोग्राम रखते थे, तो उसमें हम फर्स्ट पेज पे लिखते थे गॉडली इनविटेशन, ईश्वरीय निमंत्रण. So people used to say us, why you are sending us godly invitation? We don't want to go to God. अभी बहुत time है. So now Shivani will interact with you how we have to accept this godly invitation and connect with God while in this body. Taking 1 minute of silence. Sitting in the awareness of who am I? Position, role, responsibility, name, body, everything that is acquired. इस जीवन की यात्रा में प्राप्त किया था, लेकिन मैं वो हूँ जिसने ये सब कुछ प्राप्त किया था. ये सब कुछ मेरा है. मैं सोचने वाली, महसूस करने वाली शक्ति हूँ. The power which thinks, which feels, which experiences. I am pure, beautiful, peaceful. This is me. My personality, my nature. Om Shanti. I am not this body, not this role, not the responsibility. I am this pure being, Atma. ये सारा दिन में कहाँ काम आएगा? सारा दिन में कहाँ काम आएगा ये? हाँ जी? How will life change with one shift in consciousness? This is a shift in consciousness. Who am I? I am a doctor, I am a wife, I am a husband, I am a boss, I am a junior, I am a senior, or I am a pure, peaceful soul. It's a shift in a consciousness. So it will be a shift in a way of thinking, way of feeling, way of behaving. क्या फर्क आएगा सारा दिन में? क्योंकि ऐसा नहीं ना कि आज पहली बार ये सुना, आत्मा वर्ड पहली बार सुना. Anybody hearing it for the first time today? No. We've all heard it since we were kids. Atma hai, Atma hai, Atma hai. The soul has left.
कितनी बार सुना, लेकिन सारा दिन में जब हम कर्म कर रहे थे, रिश्तों में आ रहे थे, व्यवहार में आ रहे थे, मैं आत्मा हूँ, ये कभी याद नहीं था. Spirituality means a spiritual personality. Spiritual, spirit, personality. When the personality is of the spirit, that is spirituality. So spirituality is not 1 hour of satsang, half an hour of meditation, 10 days retreat. That is not spirituality. Spirituality कहाँ चाहिए जीवन में? क्योंकि नहीं तो मन में बहुत सारे प्रश्न है. कहते हैं टाइम ही नहीं है, अभी स्पिरिचुअलिटी के लिए कहाँ से टाइम आएगा? या कोई पूछते हैं अभी इस एज में क्यों, बाद में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे. तो इट्स एज इफ स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट. व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इट्स द पर्सनालिटी. The personality, when I am in the consciousness that I am a spirit, means I am a soul. So anyone who is interacting with the awareness that I am a soul, and what is the quality of the soul? Peace, love, purity. So when you are interacting with the personality of peace, love, purity, you are at that time practicing spirituality. तो वो कब करना है? 60 के बाद? साल में 10 दिन? दिन में 1 घंटा? नहीं. When does it have to be practiced? Every minute, every minute, every minute. So now, I am a doctor, I am a boss, I am a husband, or I am a pure soul. क्या फर्क पड़ने वाला है सारा दिन? क्या फर्क पड़ेगा सारा दिन? क्योंकि फायदा तब है जब इसका जीवन में कोई एप्लीकेशन है, जब उससे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है. नहीं तो आत्मा हूं या डॉक्टर हूं, क्या फर्क पड़ता है, काम तो वही करना ना. सो देन व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस अवेयरनेस, आई एम अ प्योर पीसफुल सोल. अब क्या फर्क पड़ने वाला है? All the actions are appropriate, or no ego. My decision will be according to natural laws and detachment from the body and without partiality and Hanji, right use of the mind and you will play the same role. And अच्छा, अभी पिछले हफ्ते एक महान एक्टर ने शरीर छोड़ा, राइट? एंड हमने सब पूरे वीक में उनकी फिल्म्स के बारे में सुना, उनके डायलॉग सुने, उनके सीन्स देखे, सब कुछ देखा, राइट? व्हेन यू लुक एट द एक्टर एंड देन यू लुक एट द स्पेक्ट्रम ऑफ रोल्स दैट ही प्लेड, स्पेक्ट्रम है ना पूरा, all kinds of roles, but different roles played by one actor. And so even though the roles were different, every role was with his unique personality. It was not the role, it was his personality playing that role. If he is playing the role of Bawarchi, doesn't mean he becomes Bawarchi. It means it is Rajesh Khanna playing the role of a Bawarchi. तो वो Bawarchi भी कैसा लगता है फिर? कैसा लगता है? फिर वो एक ऐसा Bawarchi लगता है कि उस जैसा कोई Bawarchi नहीं फिर. Which means actor कौन और role कौन से? अगर actor ये भूल जाए कि मैं actor हूँ और मेरी क्या विशेषता है, और वो सिर्फ ये समझे कि मैं रोल हूं, तो कहेगा मैं तो बावर्ची हूं, तो वो तो साधारण हो जाएगा. लेकिन उसको याद है मैं कौन हूं, मैं ये एक्टर हूं, अब मुझे बावर्ची का रोल प्ले करना है, तो वो बावर्ची का रोल भी कैसा होना चाहिए?
अब हम सारा दिन में कितने रोल्स प्ले करते हैं? हम कितने सारे रोल्स प्ले करते हैं? कितने होंगे अप्रॉक्सीमेटली? एटलीस्ट 10 to 20 रोल्स, राइट? सन किसी के बच्चे हैं, किसी के पेरेंट हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के सीनियर हैं, किसी के जूनियर हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के पड़ोसी हैं, बहुत सारे रोल्स हैं। एक्टर कौन है? एक्टर कौन है? दैट प्योर, सिर्फ सोल नहीं, कैसी वाली सोल? प्योर, पीसफुल, ब्यूटिफुल, लवफुल सोल। तो हर रोल कैसा होगा अब हर रोल कैसा होगा? आप अगर हस्बैंड भी होंगे तो कैसे हस्बैंड होंगे फिर? प्योर, पीसफुल, ब्यूटिफुल, लवफुल हस्बैंड होंगे। बॉस भी होंगे तो कैसे बॉस होंगे फिर? The personality of the actor has to come in every role. लेकिन हमने कहा मैं हस्बैंड हूं, मैं बॉस हूं, तो फिर हम क्या हो गए? रोल कॉन्शियस हो गए। मैं बॉस हूं, ये तो वॉचमैन है, तो मैं उससे कैसे भी बात कर सकता हूं। अपने आप को देखें कभी। आप सपोज एक हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं, एंटर करते हैं, गेट पे एक वॉचमैन खड़ा है, आपको सलाम करता है, आप उसकी तरफ कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं? फिर आप हॉस्पिटल में अंदर गए, एक रिसेप्शनिस्ट है, उसकी तरफ कैसे बात करते हैं? फिर आपको कोई डॉक्टर मिले, उससे कैसे बात करते हैं? फिर वो हॉस्पिटल का मोस्ट सीनियर पर्सन मिल जाए, उससे कैसे बात करते हैं? वॉचमैन, रिसेप्शनिस्ट, डॉक्टर, पेशेंट, चेयरपर्सन, 5 अलग अलग रोल्स। हमारे व्यवहार क्या हो गए? हमारे व्यवहार क्या हो गए? चेंज हुए ना? चेंज हुए। 5 मिनट में हम 5 बार चेंज हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? क्योंकि हम किससे बात कर रहे हैं? हम किससे बात कर रहे हैं? हम रोल से बात करते हैं। हम रोल से बात करते हैं। आज हम पोजीशन से बात करते हैं। आज हम लोगों की डिग्री से बात करते हैं। आज हम लोगों की गाड़ियों से बात करते हैं। करते नहीं करते? अभी आपके पास कोई आ जाए मर्सिडीज में बड़ी वाली, आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा। फिर उसके बाद कोई स्कूटर पे आ जाए खड़खड़ करके, आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा। हम किससे बात कर रहे हैं? हम किससे बात कर रहे हैं? हम उससे तो बात ही नहीं कर रहे, हम उसकी व्हीकल से बात कर रहे हैं जिसमें वो बैठ कर आया है। हम लोगों के फाइनेंशियल बैलेंस के साथ बात करते हैं। हम लोगों की रिलीजन से बात कर रहे हैं। हम लोगों की कास्ट से बात करते हैं। हम सिर्फ किससे नहीं बात कर रहे? फर्क पड़ता है कि नहीं सारा दिन? दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। और क्यों हम उनसे उस तरह से बात कर रहे हैं? क्योंकि हम भी उस कॉन्शियसनेस में है। हम भी उस कॉन्शियसनेस में है। अब जैसे ही हमारी ये कॉन्शियसनेस ये अक्वायर्ड से ओरिजिनल पर शिफ्ट हो जाएगी कि आई एम अ प्योर पीसफुल सोल, तो जो स्कूटर पे बैठ के आया वो भी कौन है? और जो मर्सिडीज में बैठ के आया वो भी कौन है? वो भी कौन है? तो दोनों से बात करने का तरीका कैसा हो जाएगा? जो एंटर करेंगे तो वॉचमैन दिखेगा, वो भी कौन है? वो भी कौन है? आत्मा है जो वॉचमैन का रोल प्ले कर रहा है। मैं बात किससे कर रही हूँ? आत्मा से। तो क्या ये हो सकता है कि हमारा सभी के प्रति जो रिस्पेक्ट है, प्यार से बात करने का तरीका है, वो सबके साथ एक जैसा हो जाएगा? हो जाएगा? यस? होना चाहिए? होना चाहिए? होना चाहिए? यस। तब हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब अभी हमारे रिश्ते अक्वायर्ड चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, और इसलिए जैसे ही वो अक्वायर्ड चीज़ें हिलती हैं, रिश्ते भी हिल जाते हैं। सारी जो बाह्य चीज़ें हैं वो अक्वायर्ड हैं, टेम्पररी है। आज कोई मिनिस्टर है, लोग कैसे बात करते हैं? कल पोजीशन गई,
चेंज्ड। आज आप डीन हैं, आपके साथ लोग कैसे बात करेंगे? कल रिटायर हो गए, इसलिए रिटायर होने के बाद भी हम रिटायर्ड वर्ड पकड़ के रखते हैं, एक्स डीन, जस्ट विद द होप कि वो एक्स कोई देखेगा नहीं और हमारे साथ वैसे ही बात करते रहेंगे। करते हैं कि नहीं करते? दिस इज वेरी, इट्स हैपनिंग द होल डे। इतना छोटा सा लिखते हैं वो एक्स को एकदम साइड पे, देखो ही मत। क्यों? क्योंकि पोजीशन के लिए रिस्पेक्ट मिल रही है। तो अगर पोजीशन गई, रिस्पेक्ट भी गई। क्यों? बॉडी कॉन्शियसनेस। तो सोल ये शब्द नहीं है, ये सत्संग में, मेडिटेशन में यूज करने का वर्ड नहीं है, ये अवेयरनेस है, जीवन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल। तो ऑटोमेटिकली जब मैं आत्मा से बात करूंगी तो ईगो मीन्स या तो मैं किसी से ऊंचा हूं या मैं किसी से नीचा हूं, दोनों गलत। क्योंकि ना हम किसी से ऊंचे हैं ना हम किसी से नीचे हैं, वी आर इक्वल। और जब दो इक्वल बात करते हैं तो इंटरैक्शन कैसी होती है? तब इंटरैक्शन कैसी होती है? हम एक बराबर है, हम इक्वल है। आप देखो जैसे ये कॉन्फ्रेंस है, सपोज सेशन के बाद बाहर मिलते हैं, आप भी दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ, अच्छा तो दिल्ली इकट्ठे हो जाएंगे ना। अच्छा फिर दिल्ली में भी आप साउथ दिल्ली से, मैं भी साउथ दिल्ली से हूँ, और साउथ दिल्ली इकट्ठा हो जाएगा। फिर साउथ दिल्ली में भी आप जीके में रहते, मैं भी जीके में रहता हूँ, और दो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आप और मैं सेम। आप आत्मा, मैं भी आत्मा। This is it. Whenever we get a common factor, हम जुड़ जाएंगे। और जैसे ही हम डिफरेंसेस लाते हैं, आप अलग मैं अलग, तो हम क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। आप में से हिंदू कौन कौन है? अच्छा, आप में से इंडियन कौन कौन है? Are you an Indian? Are you an Indian? Or you live in India? दोनों बातों में कोई फर्क? ये फर्क को हटाना है। I live in India and I am an Indian में बहुत फर्क है। I am a Hindu तो you are a Muslim, अलग अलग। I am a soul, you are a soul, I practice Hinduism, you practice Islam, no problem. But we are same. But I am Indian, you are American, separate. I am के साथ सिर्फ एक ही शब्द आ सकता है। Everything else is mine, my country, my caste, my religion, my profession, my family, everything is mine. But I am, fill in the blank. Only one word. Only one word. क्योंकि नहीं तो ये सारी चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है, और जैसे ही फॉल्स आइडेंटिटी हो जाएगी तो छोटी छोटी बातें प्रिक करती है फिर, जिसको हम कहेंगे ईगो हर्ट हो गई। ईगो हर्ट, ईगो मतलब किसी और चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बना लेना। आई एम अ डॉक्टर, कौन कौन? आप कहेंगे डॉक्टर आए थे और वापस तो कुछ और ही जा रहे हो। दिस इज माई प्रोफेशन, माई रोल, माई रिलीजन, माई कंट्री, माई फैमिली, आई एम अ सोल। अब सबको जब देखेंगे इस दृष्टिकोण से तो ईगो जैसे जैसे कम होने लगेगा, बाकी सारी कमजोरियां सारी अपने आप हो जाएंगे। रावण के 10 सिर दिखाते हैं ना, लेकिन 10 सिर में एक एक सिर को मारने की कोशिश की तो क्या हुआ? सिर गिरा, वापस लग गया। फिर कहा एक पॉइंट को मारना है, पूरा रावण मर जाएगा। वो एक पॉइंट है ये बॉडी कॉन्शियसनेस। एक पॉइंट बॉडी कॉन्शियसनेस को मारना है, सारे 10 विकार गिर जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, पूरा रावण गिरेगा। एक एक सर को गिराएंगे, नहीं गिरेगा। इसलिए राजयोग में फंडामेंटल ये अंडरस्टैंडिंग है,
I am a pure soul talking to another pure soul. ना किसी के प्रभाव में आएंगे, ना किसी के ऊपर हावी हो जाएंगे. इक्वल इक्वल. तो ये प्रैक्टिस फिर यहीं से करनी है. सारा दिन में अपने आप को याद दिलाना, एक दूसरे को मिलते हुए देखना, ये कौन, ये कौन, ये कौन. एंड फिर सिर्फ आई एम अ सोल नहीं, कैसी वाली आत्मा? प्योर और पीसफुल. हाँ, अपनी नेचर याद रहनी चाहिए. मेरी नेचर कैसी है, तो अब मेरी हर सोच, बोल और कर्म कैसा होगा? प्योर. मेरी हर थॉट कैसी हो जाएगी? क्लीन क्लीन. तो ये है complete understanding about who am I. Once I understand who am I, it becomes very easy to understand Him. Whom? Supreme power. ऐसी हस्ती जिसके बारे में हमने बहुत सुना है ना? बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, फिल्मों में भी देखा है, टीवी सीरियल्स में भी देखा है, और इतना सब कुछ पढ़ा है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो कौन होगा और कैसा होगा, कौन होगा, कैसा होगा और क्या करता होगा. Who is God? How does he look? What are his qualities? What does he do? What does he not do? Right? आज सुबह भी बहन ने कितने प्यार से कहा, भगवान इतनी जोर से गुस्सा करता है तो हम कैसे नहीं करेंगे. किसने हमें बताया कि भगवान गुस्सा करता है? हमें कभी गुस्सा किया उसने? नहीं नहीं, बहन ने सुबह बताया ना, भगवान ही गुस्सा करते हैं तो हम कैसे गुस्सा नहीं करें. पहले बताओ, हमें किसने बताया भगवान गुस्सा करता है? किसने बताया? अच्छा, आप में से किसी को कभी भगवान ने डांटा? किसी को डांटा है भगवान ने? नो. तो अनुभव तो किसी को नहीं है उसकी डांट का, सुना है, सुना है. दैट इज द पॉइंट. भगवान के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है. छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. सारा कुछ जो सुना है, पढ़ा है या टीवी पर देखा है, उसको थोड़ा साइड कर देते हैं. ठीक है? कर सकते? कर सकते? साइलेंस में बैठकर अपने माइंड पर इमेजिन लाइक यू हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन. आपको क्या लगता है कि भगवान कैसा होगा? लाइक अ चाइल्ड थिंक, अगर भगवान होगा तो कैसा होगा या कैसा होना चाहिए? हाउ वुड यू वॉन्ट गॉड टू बी? कैसा होना? अभी अभी पहले सोचो. एवरीवन, क्या सुना है, क्या पढ़ा है, क्या देखा है, doesn't matter. Imagine. Imagine God. How would God be? What would he do? What would he not do? What would his qualities be? If I ever met God, how would I want that God to be? इमेजिन करना है सिर्फ एक आर्टिस्ट की तरह, क्रिएटिव. सोचो, भगवान अगर है तो कैसा होगा? ओके, सबने सोचा उसके बारे में? सबने सोचा? ओके, एनीवन नाउ शेयर? हाँ जी, वेरी स्वीट. जैसा मैं हूँ वैसा ही वो होगा. हाउ ब्यूटिफुल. अच्छा, और वेरी गुड. हाँ जी, गो. कैसा होगा? लाइक अ मदर. वेरी गुड. लाइक अ मदर क्या? कंपैशनेट, केयरिंग एंड क्रिएटर.
ब्यूटिफुल. और नाइस 3 C's. सी क्रिएटर, कंपैशनेट, केयरिंग. एक्सलेंट. और लाइक अ पेरेंट. वेरी गुड. लाइक अ पेरेंट कैसा होगा? क्या? केयरिंग, लविंग, हेल्पफुल. वेरी गुड. और पावरफुल होगा. और कैसा होगा? लाइक अ टीचर. ओके. गाइड करेगा. और कैसा होगा? No, don't make it very complicated. I want very simple, 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 simple. हाँ? प्रोटेक्टर. प्रोटेक्ट करेगा. और कैसा होगा? लाइक अ फ्रेंड. वेरी ब्यूटिफुल. फ्रेंड क्या करता है? कैसा होगा? फ्रेंड मीन्स क्या? क्वालिटी चाहिए ना. क्या क्वालिटी चाहिए आपको उसके अंदर? शेयरिंग. हाँ, आई कैन शेयर एनीथिंग विद हिम. वो किसी को नहीं बताएगा. और कैसा होगा? हाँ जी. परफेक्ट. मेरी सारी गलतियों को माफ करने वाला. वेरी गुड. और कैसा होगा? इनोसेंट होगा. वेरी नाइस. और कैसा होगा? हाँ जी. वेरी वेरी जेनरस. वेरी नाइस. वेरी जेनरस. और कैसा होगा? पीसफुल होगा. राइट. इनोवेटिव होगा. राइट. हाँ जी. लिबरेटर होगा. और कैसा होगा? हाँ जी. इम्पार्शल होगा. वेरी गुड. नॉलेज देगा. हाँ. अच्छा, वो हमेशा खुश होगा. यस. और हेल्प करने वाला होगा. सर्वज्ञानी. अच्छा, ये डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं चाहिए जो पढ़े हुए हैं कहीं पे. नहीं. व्हाट डज माई माइंड से? आपके किसी के भी मन ने नहीं कहा कि भगवान गुस्से वाला होगा. डिड यू सी दैट? किसी के भी मन ने नहीं कहा कि भगवान वो होगा जो सजा देगा. किसी के भी मन ने नहीं कहा कि भगवान वो होगा जो गलतियों के लिए श्राप दे देगा. इट जस्ट डिडंट कम टू अस. क्योंकि गॉड मीन्स क्या? इट जस्ट डिडंट कम. किसी को भी नहीं. और आपको थॉट में भी नहीं आया ना किसी को भी. एंड फिर भी हमने जो पढ़ा है और सुना है वो सारा कुछ क्या है? वो सारा कुछ क्या है? लेकिन हमारा माइंड जब गॉड को कंसीव किया तो कैसी हस्ती को कंसीव किया? जो सिर्फ लविंग होगा, हैप्पी होगा, पावरफुल होगा, नॉलेजफुल होगा, शेयरिंग होगा, केयरिंग होगा, कंपैशनेट होगा, परफेक्ट होगा. परफेक्ट होगा ना. ये सारी चीज़ें जो किसी के अंदर होंगी तो वो कैसा होगा? वो परफेक्ट हस्ती होगा. विच मीन्स सारी बातें जो हमने अभी तक सुनी है और पढ़ी हैं उसमें थोड़ा थोड़ा, हाँ, दाल काली है. वो हम कल देखेंगे. वो सारी बातें बहुत एक अच्छी भावना से लिखी गई थी. शास्त्र, सारी कहानियाँ सब जो थी वो बच्चों को सिखाने के लिए बहुत प्यार से, भावना से लिखी गई थी. लेकिन फिर वो करते 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 हमने ना कहानी समझी ना भावना समझी. हमने उनको एज इट इज़ फिजिकल ले लिया. अब हमें खुद इसलिए उस पर सोचना चाहिए. अगर कोई हमसे कहे कि भगवान आपसे नाराज़ है तो हमें तुरंत उसको क्या बोलना चाहिए? हमें कई बार लोग बोलते हैं ना, कुछ हमारे भाग्य में जब थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो रहा होता है तो कोई आकर हमें क्या कहता है? भगवान आपसे नाराज़ है, या आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता आपसे नाराज़ है. और हम मान जाते हैं उस टाइम. और हम कहते हैं, अच्छा क्या बताओ उनको खुश करने के लिए क्या करना है फिर? वाई? बिकॉज हमने उस हस्ती के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, उसको पहचाना नहीं, अनुभव नहीं किया. इसीलिए जिसने भी हमें कुछ कहा हमने कहा ऐसा ही होगा. और हमें किस चीज़ से मतलब था? मेरे लाइफ के सारे काम ठीक हो जाए. अगर वो नाराज़ है तो उसको खुश करो फिर जल्दी. ये नहीं कभी सोचा कि भगवान नाराज़ कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज़ गॉड. अगर मैं आत्मा पीसफुल हूँ, प्योर हूँ, लविंग हूँ, तो वो परम आत्मा है. तो वो भी कैसा होगा? वो भी कैसा होगा? आत्मा, परम आत्मा.
तो मैं आत्मा, हमने आज एक्सेप्ट किया। आपने एक्सेप्ट किया कि आत्मा प्योर, ब्यूटीफुल, पीसफुल है? एक्सेप्ट किया या सिर्फ सुना और हाँ हाँ किया? क्यों आप एक्सेप्ट करते हैं कि आत्मा प्योर, पीसफुल, लवफुल, ब्यूटीफुल है? सारा दिन में तो हम इतना गुस्सा करते हैं, तो हम पीसफुल कैसे हुए? क्यों हमने एक्सेप्ट किया कि ये आत्मा की नेचुरल क्वालिटी है? क्यों हमने एक्सेप्ट किया? क्योंकि हमें कंफर्टेबल क्या फील होता है, व्हाट फील्स नाइस। कितना भी गुस्सा करें, कितना भी उस गुस्से को जस्टिफाई भी कर लें, अच्छा क्या लगता